तो आज हमारा यहाँ पे मेन रीज़न है जो आने का, हम तो है कमला डिस्ट्रिक्ट का। तो मेन मेरा आने का कारण यही है कि हमारा यहाँ पे एमएलए कैंडिडेट में हमारा ER तिबिन मुर्तम जो बीजेपी से है और हमारा ER अजय मुर्तम जो एनपीपी से है। तो उसका जो वर्कर्स है और जो बीजेपी पार्टी है जो पोल्स प्रोपोगंडा, जैसे एग्जांपल हम लोग को एनपीपी को अपोजिशन पार्टी बोल के कैंपिंग कर रहा है, तो ये पब्लिक को गुमराह नहीं करने से ठीक है। तो आजकल सोशल मीडिया ज़माना में किसी को गुमराह नहीं कर सकता। अब सच्चाई को बोलिए, अब कैंडिडेट का आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी और उसके विजन को देख के बोलिए। तो पार्टी का अगेंस्ट में ये हम लोग को पोल्स प्रोपोगंडा नहीं करना है। ये तो हम लोग अपोजिशन पार्टी नहीं है। टू द जीरो प्रेस क्लब डेट 9 April 2024 प्रेस रिलीज। I Sri Guchi Sanjay, spokesperson of National People's Party on behalf of Kamle unit, would like to press release as follows. Number 1, National Democratic Alliance clarification. We are party in NEDA at National Democratic Alliance like BJP, NPP, AGP, NCP at central level. To Northeast Democratic Alliance clarification. We are alliance in NEDA in Northeast state like Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Assam. Formation of NEDA was for dead parties with Northeast aspect. Example, plain people celebrate festival like Durga Puja, Holi, etc. And our hill people celebrates festival like Nyokum, Boribot, Diri, etc. Therefore, to tell the mainland India parties, NEDA was formed. Our belief and custom to center parties. Number 3. 25th Raga ST Assembly Constituency General Election 2024 National People Party stand. We are fighting state against BJP Alliance Party in 25th Raga ST Assembly Constituency. We are ruling party in 25th Raga ST Assembly Constituency. Our party has defeated BJP in 2019 general election with more than 700 voters lead against BJP candidature. For our party NPP, we have served NPP government 1.0 under the leadership of Honorable MLA Sri Terin Dakpa, but due to his health condition, he could not contest in this election. Therefore, our NPP party we have launched a mission for NPP government 2.0 at 25th Raga ST Assembly Constituency under the leadership of ER Ajay Murtam. After this general election, we are post-alliance party with the BJP in the state. Our leader ER Ajay Murtam will give helping hand to Sri Pema Khandu government in Arunachal Pradesh and support Viksit Arunachal Pradesh flagship program. Our party stands for parliamentary election 2024. We are alliance with BJP MP candidature Sri Kiren Rijiju for the Western Parliament, and Sri Kiren Rijiju is our NPP MP candidature for Western election 2024. Our party national president Conrad Sangma will help Sri Narendra Modi government at center, and we will give support in his flagship program like Viksit Bharat. Our NPP Kamla unit appeals for both general and parliament election 2024. Our National People Party Kamla unit appeals our workers voter of 25th Raga
ST Assembly constituency to vote for E.R. Ajay Murtam Sarkar at Raga, to vote for Pema Khandu Sarkar at Arunachal Pradesh, to vote for Narendra Modi Sarkar at Center, and also NPP party request to BJP Alliance party not to give false propaganda to the voters. Public Alliance Party in 25th Raga Assembly ST constituency. Thank you. सर आपको क्या लगता है कि रिजिजू को किस लिए वोट देना चाहिए? किसको? किरण रिजिजू को। हम लोग किरण रिजिजू हमारा ये है NDA अलायंस और नेडा अलायंस का ये है, तो इसलिए इस बार पार्लियामेंट्री में हमारा NPP पार्टी MP कैंडिडेट पुटअप नहीं किया। तो ऐसा करके हमारा NPP पार्टी हम लोग हर इलेक्शन सिंगल लड़ता है, लेकिन जनरल इलेक्शन में तो हम लोग BJP के साथ हम लोग लड़ रहा है, लेकिन पार्लियामेंट्री में हम लोग नेता का ये हिसाब में तो हम लोग उसको बहुत मारना चाहिए, वही है। ये जोरोवासियों का एक सेंटीमेंट है कि डिलिमिटेशन इशू को लेकर, क्योंकि ये 20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी किरण रिजिजू सर जो सेंटर में भी कैबिनेट मिनिस्टर थे तब भी नहीं हो पाया, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? इसमें आप लोग का इशू को हमने भी देखा था, तो एक्चुअली हम तो है कमला यूनिट का, तो हम स्टेट का भी ये नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा लास्ट नवंबर में स्टेट का हमारा NPP पार्टी जो हम लोग क्लियर कर मीडिया ये करके ये दिया है कि हम लोग इस बार MP कैंडिडेट पुट नहीं कर रहा है, तो नेडा का और NDA का ये हम लोग अलायंस का हिसाब में बस हमारा अपील है, तो उसको आप BJP पार्टी को पूछने से होगा। सुनने में आया है कि आप लोग का कहीं कार्यकर्ता या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी हो, जैसे कि सुनने में आया है जो कमला यूनिट का जो NPP जो प्रेसिडेंट था मिस्टर लिम्बिया हेंकर, उसका वो भी BJP में मार्च हो गया, एंड देन उसके साथ ही साथ में आपका जुमते हनकर सेक्रेटरी NPP जो अरुणाचल प्रदेश का है वो है, और उसके साथ में तेरिन बागपे जो पोरमर MLA है, ये तीनों के तीनों आपके NPP से डायरेक्ट होके ये BJP में मार्च हो गया। इसका रीज़न कारण क्या है? इसमें यह है कि हमारा NPP पार्टी रागा में कोई नया पार्टी नहीं है, तो हमारा रागा में NPP पार्टी आया है 2018 को अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट श्री ग्यूचो काबक। तो वैसे करके अभी हमारा तो हम लोग एक बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, तो हम लोग लाइक BJP जैसे कोई हम लोग इतना बड़ा पार्टी नहीं है, लेकिन हमारा ये NPP पार्टी हमारा नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है हम लोग, और नेडा में ये बोल के तो हम लोग ये है कि हमारा मेघालय में हमारा सरकार है, कोंडक संगमा का ये है, और मणिपुर में हमारा ये है गवर्नमेंट है, उसमें हमारा साथ है, और इस बार ये इलेक्शन में भी ये रहेगा कि आफ्टर ये इलेक्शन तो पोस्ट अलायंस हम लोग BJP के साथ रहेगा। और अभी आपका जैसे कि आप जैसे बोला है हमारा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट कमला यूनिट लिंबिया हंकर, तो वो वहाँ शिफ्ट हुआ है कि, तो इसलिए हम लोग पार्टी उसको हम एक्सपेल कर दिया है उसको एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसका अपना कुछ रीज़न होता होगा, लेकिन ऐसे पार्टी वर्कर उसको नहीं करना है तो उसको हम लोग ये कर दिया। और इसका बाद रहे बात आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारा स्टेट का जनरल सेक्रेटरी है, वर्किंग जनरल सेक्रेटरी जुमता हंकर, तो उसका भी शायद कुछ क्लियरफिकेशन हम लोग को नहीं मिला, लेकिन हमारा पार्टी का एज पर बायलॉ हिसाब में तो उसको भी हम लोग एक्सपेल किया हुआ है पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ का कारण से। और हमारा फिर ये ऑनरेबल MLA तरीन दकबा, तो वो भी तो हम लोग भी देखा है मीडिया में देख रहा है कि वो भी BJP में, और उस दिन भी हमारा वो रागा में ये CM का BJP का पार्टी कुछ रैली था, तो उसमें भी उसका प्रेजेंस देखा गया है। तो हम लोग बीइंग ये NPP यूनिट का स्पोक पर्सन का हिसाब में, तो हम लोग हमारा पार्टी हाई लेवल को अपील करेगा कि उसको भी एक्सपेल करने के लिए जल्दी से जल्दी। तो उसका क्या कारण है वो हमको बता नहीं पाएगा, तो हमारा फॉर्मर MLA ही बता पाएगा।
Thank सर you. आप एज ए स्पोक पर्सन जो ये एनपीपी का, तो एनपीपी भी ये नॉर्थ ईस्ट में एक फेमस पॉलिटिकल पार्टी है, एक बड़ा पार्टी है। हाँ। तो ऐसा क्या रीजन आ गया जो बीजेपी का साथ अलायंस होने के लिए? क्योंकि आप लोग भी खुद अपना कैंडिडेट को बता सकते हैं, तो इसका रीजन बताइए कि आप लोग जो उसमें अलायंस होने का कारण क्या है? इसमें ये रहता है कि हम लोग जो नेडा अलायंस है, एनपीपी और हम लोग का बीजेपी नेडा अलायंस एट सेंटर, तो इन नॉर्थ ईस्ट वी आर अलायंस इन नेडा। तो और हमारा एनपीपी पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट का ही एक नेशनल पार्टी है, एक सिंगल पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट जो नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करता है। और हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी का ये हिसाब में हमारा नॉर्थ ईस्ट का एस्पेक्ट जो हमारा यहाँ का डेवलपमेंट और यहाँ का जैसे कि बहुत कुछ है, जैसे कि कस्टम ट्रेडिशनल, और इसमें हम लोग बहुत अलग है मेनलैंड पार्टी से। तो इसलिए हमारा एनपीपी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, ताकि एग्जैक्ट जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए हम लोग ट्राइबल है, हमारा ट्राइबल में मीट मच्छी चलता है हमारा इधर में, लेकिन मेन जो इंडिया का जो पार्टी भी रहो और उसका लोग भी रहो, वो लोग कोई ब्राह्मण है, कोई क्या है, कोई नॉन वेज है, वेज है, ये है। लेकिन एज पर हमारा ट्राइबल बेल्ट में नॉर्थ ईस्ट में हमारा मीट का एक अलग सा एक ये रहता है, रोल रहता है। तो हम कोई भी मीट उसका बात नहीं करेगा एक्चुअली मीट का ना, तो ऐसे टाइप का। और हम लोग मेनली हम लोग बॉयल ज़्यादा खाता है, हम लोग ऑर्गेनिक ये करता है। और मेनलैंड पार्टी लोग क्या रहता है कि ये लोग वो लोग चीज़ खाने का अलग है, जैसे कि वो लोग सांभर खाता है, तेल वेल ऐसे करके। तो इसलिए जो सेंट्रल पार्टी जो रहता है, जो या स्कीम पॉलिसी प्रोग्राम जो हमारा यहाँ के लिए पूरा इंडिया के लिए करने से भी, लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट एक ऐसे ये क्षेत्र है कि तो हम लोग को वो लोग से हम लोग एप्लीकेबल थोड़ा नहीं रहता है। तो इसलिए हमारा एनपीपी जो नेडा फॉर्मेशन किया है कि वो लोग को बताने के लिए हमारा नॉर्थ ईस्ट का ज़रूरत क्या है और यहाँ का हमारा आदमी का सोच क्या है और नेसेसिटी क्या है, वो बताने के लिए हम लोग नेडा में है। तो वही है हम लोग, और हम लोग कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। तो आपने वही जो अपील भी कर रहा है कि एज आप लोग ये अलायंस होने का, बीजेपी का साथ अलायंस होने का, और इस बार आप लोग का कैंडिडेट भी नहीं है, और आप लोग ये जो वेस्टर्न पार्लियामेंट का जो किरण रिजिजू को आप लोग सपोर्ट करेंगे बोल के आप लोग वो क्या है, तो बहुत अपील भी कर रहा है। तो वही मेरा पहले का सवाल ही है, जो ख़ास तौर से हमारा जो जीरोवासी का पूरा लोअर सुबनसिरी के लिए, तो उन लोग का एक मेन एक मुद्दा है कि डिलिमिटेशन इशू को लेकर तो अभी तक नहीं हो पाया। तो इसके ऊपर आप क्या क्या चाहते हैं कि पब्लिक जो अभी थोड़ा उसमें है, गुस्सा में है, तो आप किस तरह उसको पब्लिक को अपील करेंगे? तो हमारा जैसे कि जो मैं यहाँ आज अपील करने आया, मैं पार्टी का हिसाब में है, मैं एक पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ एनपीपी का। जो आप लोग का जो डिलिमिटेशन इशू है जो जीरोवासी का, तो इस पर हमारा ये जो हमारा किरण रिजिजू का भी हमने देखा इसका स्टेटमेंट, और हमारा ऑनरेबल ये सीएम पेमा खांडू का भी, तो आप लोग का कंसिडरेशन में है। तो आप लोग का जो इशू है जो जीरोवासी का, ये एक बहुत जीनियन इशू है यहाँ पे, क्योंकि दो कंट्री से आप लोग का यहाँ पे बूथर्स पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि एक कंट्री में आप लोग का डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट का प्रोग्राम पॉलिसी आप लोग को पहुँच नहीं पाता है। तो आप लोग का ये कंसिडरेशन में है। और हमारा सीएम साहब भी खुद ही बोला है असेंबली में 70 सीट बना कर रखा है। दैट मीन्स अभी सीटिंग हमारा ये एमएलए होने से भी तो 60 है हमारा टोटल नंबर्स इन अरुणाचल। लेकिन इन फ्यूचर में शायद ये आपका जो डिमांड है, जो आप लोग का जो जीनियन डिमांड है जीरो का, ये भी हो जाएगा शायद। तो हमारा ये भी वो लोग से भी मैं अपील रहेगा बीजेपी गवर्नमेंट से, तो जीरो का जो डिमांड है वो जीनियन डिमांड है। आप खुद ही देख लीजिए, इतना पॉपुलेशन है तो गवर्नमेंट का कहाँ से होगा। ये लोग डायरेक्ट टू द बेनिफिशियरी में नहीं पहुँचता ही है ना। तो इसलिए एवरी एस्पेक्ट डेवलप तो उसमें होना चाहिए। थैंक यू।